Hello friends, good morning to all my dear friends. Welcome to Ligro Institute. Friends, today I have come here with a very new special topic, and that is about English grammar. It means you can say these all are about preposition. So friends, if you are a student of 12th class, if you are a student of 10th class, then you must watch this video. You should not ignore this video. And this is not only about our class. This is about for all people, all students, because these all are very important in our English speaking and also in our writing. If you don't know about these words, then how can you use in your English speaking? It means if you want to say anything like English, if you want to say I'm not aware of these things, then how can you say? If you don't know about these words, then how can you say? So that time you will have to face too much difficulties. So friends, so now I'm going to tell you one by one. So if you are new person, then please subscribe my channel and press the bell icon to get more new videos, क्योंकि मैं ऐसे ही नई नई वीडियो अपलोड करता हूँ। और इंग्लिश के बारे में आप अपना इंग्लिश कैसे सुधार सकते हैं और कैसे लोगों से बात कर सकते हैं, हाउ टू टॉक विथ पीपल, हाउ टू राइट इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश. So friends, now I'm going to tell you one by one with example so you can understand very well. So friends, first your word is aware of. It means जागरूक होना. In Hindi you can say जागरूक होना, aware of. So if you want to use this word in the sentence, then you can use very easily. So look at whiteboard. So first of all you have to think in your mind what type of sentence do you want to make on the basis of aware of. If you don't know about these things and if you want to know, it means your sentence is like this. मैं, it means your sentence is like this. मैं इसके बारे में जागरूक नहीं हूँ. Friends, this is your sentence. If you want to say मैं इसके बारे में जागरूक नहीं हूँ, it means yes, it means if you don't know about anything very well, so that time you can say I'm not aware of these things. I'm not aware of these things. I am not aware of these things. This thing. Yeah, if you don't know about any news, yeah, if you don't know about latest news, then that time if anyone asks to you, यानी यदि आप किसी नए न्यूज़ के बारे में नहीं जानते हैं जो अभी फ़िलहाल में आया हो, चाहे कोई भी समाचार के बारे में आप नहीं जानते हैं और आदमी आपसे बात कर रहा है, पूछ रहा है, चाहे कोई भी बात पूछ रहा है, यदि आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग. मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ. या आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं राम के बारे में नहीं जानता हूँ. या आप ऐसे बोल सकते हैं मैं इस किताब के बारे में नहीं जानता हूँ, या मैं इस किताब के बारे में जागरूक नहीं हूँ. इट मीन्स you have no any knowledge about this book. So that time you can say I am not aware of this book. So friends, listen. I am not aware of this book. It means I don't know about very well this book. So that time you can say I am not aware of this book. मैं इस किताब के बारे में जागरूक नहीं हूँ. मैंने मुझे कुछ नहीं मालूम है इस किताब में क्या है, इसमें क्या क्या लिखा है. मैं इस किताब के बारे में नहीं जानता हूँ. तो आप उस समय बोल सकते हैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस बुक. तो फ्रेंड्स, आई होप you have understood very well. So now this is your time. Now this is your time to know about beware of.
be aware of. Be aware of. It means सावधान होना. It means सावधान होना. जैसे मान लीजिए कोई खतरनाक चीज़ है, चाहे कोई आदमी है और उसके बारे में हमें सावधान होना है, तो आप उस समय बोल सकते हैं कि बीवेयर ऑफ मैड पीपुल, बी अवेयर ऑफ डेट डॉग, यानी उस कुत्ते से सावधान हो जाओ. या बी अवेयर ऑफ डेट गर्ल, चाहे बी अवेयर ऑफ डेट पर्सन. सो दैट टाइम यू कैन से बी अवेयर ऑफ. जैसे मान लीजिए आजकल कुत्तों बहुत हैं और जैसा आप बोलना चाहते हैं कुत्तों से सावधान हो जाओ, कुत्तों से सावधान हो जाओ. It means be aware of dogs. चोरों से सावधान हो जाओ. कि लोग बोलते हैं ना, कहीं हम लोग जाते हैं और कोई वहाँ पे चोर रहता है तो बोलते हैं ना लोग, चोरों से सावधान हो जाओ. तो आप ऐसे बोल सकते हैं बी अवेयर ऑफ थीव्स. थीव्स, THIEVES. और यदि आप ऐसे बोलना चाहते हैं कि लड़कों से सावधान हो जाओ, चाहे नटखट लड़कों से सावधान हो जाओ जो नटखट है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं बी अवेयर ऑफ नॉटी बॉयज. नॉटी बॉयज. तो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल. सो यदि आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या वीडियो आप पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है. चलते हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर. ये तीनों हो गया है और तीसरा है गिल्टी ऑफ, यानी दोषी होना. जैसे यदि आप किसी काम के बारे में चाहे कोई भी चीज़ का दोषी हैं तो दैट टाइम यू कैन यूज गिल्टी ऑफ. इट मीन्स ही इज गिल्टी ऑफ दिस मर्डर, ठीक है, या ही इज गिल्टी ऑफ दिस एक्सीडेंट, ही इज गिल्टी ऑफ दिस थिंग्स, या ही इज गिल्टी ऑफ दिस मिस्टेक, यानी इस गलती का वही दोषी है, ठीक है. तो जैसे आप बोल सकते हैं कि वह इस गलती का दोषी है. Then that time you can use guilty of. So first of all you have to use your subject. He is guilty of इस गलती. It means this mistake. He is guilty of this mistake. या आप ऐसे बोल सकते हैं कि you are guilty of this murder. तो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल. आपने बहुत अच्छा से समझ लिया है. तो चलिए अगले वाले हम बढ़ते हैं. अगले वाले टॉपिक पर ये है प्राउड ऑफ. इट मीन्स गर्व होना, यानी यदि आप किसी भी चीज़ पर गर्व महसूस करते हैं, यानी बहुत अच्छा ही महसूस करते हैं, तो उस समय आप बोल सकते हैं गर्व होना. इस मीन्स प्राउड ऑफ.
जैसे कितना लोग बोलते हैं ना, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, मुझे अपने देश पर गर्व है, यानी नाज है। आई एम प्राउड ऑफ माई सन, मुझे अपने बेटे पर नाज है। कितना लोग ऐसे बोलते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम प्राउड ऑफ माई सक्सेस, मुझे मेरी सफलता पर नाज है, गर्व है। तो दैट टाइम यू कैन यूज प्राउड ऑफ। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, यदि आप बोलना चाहते हैं कि मुझे अपने लड़के पर नाज है, मुझे अपने लड़के पर, बेटे बेटे लिख सकते हैं, लड़के भी लिख सकते हैं, चाहे बेटे, मुझे अपने बेटे पर नाज है। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to look at your sentence, and here I have written bete, it means you have many sons. Okay, this is plural word bete, but if I will write beta, then you can understand this is singular word, but this is plural word because I have written bete, it means they have many sons. Okay, यानी यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि बेटे जब लिखे हैं यानी यहाँ पे बहुत सारे लड़के होंगे, ठीक है, यानी उनके पास दो चार माने एक से ज़्यादा लड़के हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बेटे 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 लिखे हैं। यदि मैं बेटा लिखता तो समझ जाते आप एक ही बेटा है, ठीक है। तो देखिए, मुझे अपने बेटे पर नाज है, यानी मेरे पास, यानी जो उनके बेटे हैं, किसी का भी बेटे हो, जो उनके पास जो बेटे हैं उन पर नाज है, क्योंकि वे अच्छे काम करते हैं, उन पर विश्वास है कि वे कुछ करेंगे। तो दैट टाइम यू कैन यूज आई एम प्राउड ऑफ my sons. You have to use plural word, S-O-N-S. This is plural word, but if you want to use singular word, then you can only write son. This is singular word, and this is used for indicate about singular name, and this is used to indicate about plural names. It means here I have written about बेटे, यानी यहाँ पर मैंने बेटे लिखा है, तो बेटे लिखा है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ड। तो प्लूरल वर्ड में जानते हैं आप लोग कि हम किसी भी नाउन के लास्ट में एस लगा देते हैं। जैसे काऊ है तो काऊ का प्लूरल काउज हो जाएगा, बॉय का प्लूरल बॉयज हो जाएगा। तो आप ऐसे, तो या आप ऐसे बोलना चाहते हैं कि मुझे अपनी सफलता पर नाज है, यानी गर्व है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, आई एम प्राउड ऑफ माई सक्सेस। आई एम प्राउड ऑफ माई सक्सेस, ठीक है, SUCCESS। सो फ्रेंड्स, यू कैन मेक योर सेंटेंस लाइक दिस। ओके, तो चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, एंड ये है श्योर ऑफ। इट मीन्स निश्चित होना। यदि आप किसी चीज़ के बारे में माने निश्चित नहीं है, माने आप किसी भी काम के बारे में निश्चित नहीं है, इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनी वर्क, सो दैट टाइम, या इफ़ यू आर श्योर अबाउट एनी वर्क, then that time you can use sure of. You can use also in negative, and you can also use in the affirmative in any sentence, in interrogative or also in WH sentence. So यदि आप बोलना चाहते हैं कि मुझे अपनी सफलता पर नहीं, मैं इस काम के बारे में निश्चित हूँ, ठीक है, मैं इस काम के बारे में निश्चित हूँ, मैं इस काम के बारे में निश्चित हूँ। तो
आई एम श्योर ऑफ अबाउट दिस वर्क। या आप ऐसे बोल सकते हैं, मुझे अपनी सफलता पर निश्चित है। मुझे अपनी सफलता पर निश्चित है। आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस। मुझे अपनी सफलता पर निश्चित है, यानी मैं अपनी सफलता अवश्य ही पाऊंगा। तो जैसे कोई लड़का बोलता है ना, तो मैं अवश्य ही डॉक्टर बनूंगा, तो निश्चित है ना, मुझे अपनी सफलता पर निश्चित है ना, तो दैट टाइम यू कैन से आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस। आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस। या यदि आप कोई क्वेश्चन बनाते हैं और उसका आंसर आप देखते हैं कि नहीं ये सही है, पक्का सही है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम श्योर ऑफ दिस आंसर। आई एम श्योर ऑफ दिस आंसर, यानी मुझे इस उत्तर के बारे में निश्चित है, निश्चित मालूम है, पता है। तो आप उस समय बोल सकते हैं आई एम श्योर ऑफ दिस आंसर। ठीक है, आई एम श्योर ऑफ दिस आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने ये समझ लिया, और चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज कॉन्फिडेंट ऑफ, यानी आत्मविश्वास होना। यदि आप किसी के चीज़ के बारे में आत्मविश्वास होना, यानी आत्मविश्वास है, यानी कॉन्फिडेंट है, यानी अपने पर निर्भर, यानी आत्मविश्वास होना, तो आप उस समय बोल सकते हैं कॉन्फिडेंट ऑफ। जैसे मान लीजिए आप आत्मविश्वास है कि आप एक डॉक्टर बन जाएंगे, आप एक सफल आदमी बन जाएंगे अपने जीवन में, या आपको आत्मविश्वास है कि आप अपने जीवन में कुछ करेंगे। ठीक है, तो दैट टाइम यू कैन यूज कॉन्फिडेंट ऑफ। जैसे आप बोलना चाहते हैं कि मुझे अपनी सफलता पर आत्मविश्वास है। ठीक है, मुझे अपनी सफलता पर आत्मविश्वास है, तो दैट टाइम यू कैन यूज आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ दिस इज एफ। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस। ऐसे बोल सकते हैं, मुझे अपनी सफलता पर आत्मविश्वास है। या आप कोई भी काम करते हैं, ठीक है, आप मान लीजिए कोई भी काम करते हैं और उसमें आपको आत्मविश्वास नहीं है, यानी उसमें आपका विश्वास नहीं है कि काम होगा, सही होगा कि नहीं होगा। या कोई भी आप काम करते हैं, जैसे आप दौड़ते हैं और उसमें बोलते हैं कि मुझे दौड़ पर आत्मविश्वास है, चाहे मुझे जीत पर आत्मविश्वास है, या मुझे इस काम पर आत्मविश्वास है, तो उस समय आप बोल सकते हैं आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ दिस वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको उस काम के बारे में आत्मविश्वास नहीं है, तो आप वहाँ पर नोट लगा सकते हैं, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ दिस वर्क। जैसे मान लीजिए आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ दिस वर्क। फ्रेंड, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस एंड दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, सो यदि आप अफर्मेटिव बनाना चाहते हैं, या निगेटिव बनाना चाहते हैं, या इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं, या WH बनाना चाहते हैं, आप किसी पर भी कोई सा भी लेकर, कोई सा भी प्रीपोजिशन लेकर, कोई सा भी वर्ड लेकर आप बना सकते हैं। ठीक है, ये आपके दिमाग पर डिपेंड करता है कि आप कैसे कोई सेंटेंस बनाते हैं। जैसे उसको WH में बनाते हैं, कि इंट्रोगेटिव में बनाते हैं, या इंट्रो प्लस निगेटिव में बनाते हैं, आप कैसे बनाते हैं। जैसे आप ऐसे बोलना चाहते हैं, क्या तुम्हें अपने काम के बारे में विश्वास है, आर यू कॉन्फिडेंट ऑफ अबाउट योर वर्क, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। या आर यू कॉन्फिडेंट ऑफ योर सॉन्स, आर यू कॉन्फिडेंट ऑफ योर सॉन्स, क्या आप अपने बेटे पर आत्मविश्वास हैं। या आर यू कॉन्फिडेंट ऑफ योर वर्क, क्या तुम अपने काम पर विश्वास है।